to all. Myself, Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is continuation of the last video, that is indicator. Now, next are external indicators. Some indicators cannot be added to the reactive medium because of some difficulties. If the indicator is a dark color liquid, the sudden change of color cannot be observed clearly. एक्सटर्नल इंडिकेटर्स मतलब जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स को हम ऐड नहीं करते हैं रिएक्टिंग मीडियम में क्योंकि कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे अगर इंडिकेटर डार्क कलर का है, डार्क कलर का लिक्विड है, तो क्या वो एकदम कलर चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे? हम क्लियरली नहीं कर पाएंगे। अगर वो खुद ही डार्क कलर का है और डार्क कलर आ रहा है तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। If the indicator forms an insoluble precipitate with the solution to which it has been added, in such case the result will be low. अगर हमारा इंडिकेटर insoluble precipitate फॉर्म कर रहा है सॉल्यूशन के साथ जिसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं, अगर हमने उसको कोनिकल में ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल नाफ्थलीन को एसिड के साथ ऐड कर दिया H2SO4 के साथ या KHP के साथ, और उसने उसी के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लिए, तो भी हमारा रिजल्ट जो है उसमें एरर आएगा, वो वेरी करेगा, वो लो आएगा। सो ये डिफिकल्टीज होती हैं जब अगर हम इंडिकेटर को ऐड करते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन। So K3FeCN6 is used as an external indicator. इसको हम यूज करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर in the titration of K2Cr2O7 and ferrous ammonium sulfate in acidic medium, and it reacts with ferrous sulfate. K3FeCN6 react with ferrous sulfate and form ferroferricyanide, that is of deep blue color. Thus, when the drop of the indicator remains unchanged in color, it shows that there is no more ferrous sulfate left in the solution and all of it is reacted. So, this is example of the external indicator. Now, self-indicator. The best example of self-indicator is KMnO4 potassium permanganate. When the potassium permanganate and are titrated with oxalic acid, then no indicator is added in the solution because potassium permanganate react as a self-indicator. Okay, when KMnO4 is in burette and oxalic acid in conical flask, and drop by drop we added the KMnO4. When all the reaction is completed and the end point is reached, the KMnO4 gives a light pink color. So it is KMnO4 is a self indicator. पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर है। पोटेशियम परमैंगनेट के टाइट्रेशन में हम कोई भी इंडिकेटर ऐड नहीं करते हैं फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, जो भी है वो खुद ही इंडिकेटर जैसा एक्ट करता है, लाइट पिंक कलर आता है एंड में। नाउ मिक्स इंडिकेटर। Sometimes it is desirable to have a sharp color change over a very narrow and selected pH range. हमको बहुत pH रेंज जरा सा चेंज हुआ, उसमें हमको कलर चेंज चाहिए, तो वो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको मिक्स इंडिकेटर लेना पड़ता है जो एसिड में और बेस में दोनों में कलर प्रोड्यूस करे। Such indicators are usually selected and mixed so that their values are close together and the overlapping colors are complementary at one intermediate pH value. एक pH वैल्यू पर उन दोनों का जो कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, दोनों मिक्स होके एक कलर प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन गिव अ रेड कलर इन एसिड। ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन जो है वो रेड कलर देता है एसिड में, ठीक है, और रेड कलर देता है अल्कलाइन मीडिया में। कौन? मिथाइल रेड। तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमको एक 5.5 pH पर दोनों कलर जो है वो मिक्स हो गए, तो हमको ग्रे कलर दिखाई दिया। With a sharp transition through gray at pH 5.1 as the two color of indicators are complementary. Example, next is a mixture of phenolphthalein and 1-naphtolaphthalene. This is also another example of the mixed indicators. And methyl orange
Methyl orange, it is an example. Methyl orange, 1 gram of ethyl orange and 1.4 gram of xylene cyanol. That is a blue dye. Methyl orange 1 gram and 1.4 gram blue dye mix की हमने in 500 ml of 50% ethanol. 500 ml of 50% ethanol में ऐड किया. The color change from the alkaline to acidic medium. सबसे पहले अल्कलाइन से एसिडिक मीडियम में कलर चेंज होगा. मिथाइल ऑरेंज है और xylene cyanol है. So अल्कलाइन में ग्रीन कलर था, जब बेस था तो ग्रीन कलर था, जब मिले बीच में दोनों कलर ग्रे हुए और देन फिर हमको पर्पल कलर मिला. अल्कलाइन में ग्रीन था, देन हमको पर्पल मिला एसिडिक में और बीच में वो ग्रे कलर हुआ. सो वी हैड स्टडीड द वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स एंड एसिड बेस इंडिकेटर, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स. वी हैड स्टडीड अबाउट देम. Self indicator, external indicator and mixed indicator. If we talk about the self indicator, then the best example is the potassium permanganate. Potassium permanganate is a self indicator. Potassium permanganate के titration में हमको कोई indicator add नहीं करना है. For example, अगर हम बात करें acid base titration में of NaOH and an acid, अगर NaOH की और H2SO4 की बात करें तो इनका जब titration करेंगे तो हमको एक इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है. लाइक फिनोल्फथलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, मिथाइल रेड हुआ, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम वो दोनों मिक्स होकर कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे. उनमें से कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो इंडिकेट करेगा. बट जब हम बात करते हैं सेल्फ इंडिकेटर की, हमने कोनिकल क्लास में ऑक्सैलिक एसिड लिया है, ब्यूरेट में हमने फिल कर दिया है पोटेशियम परमैंगनेट. ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड इन दैट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन. And when the reaction is completed, one excess drop of that KMnO4, उस KMnO4 की एक और ड्रॉप ऐड करते ही जो हमारा सोल्यूशन है इट टर्न्स पिंक, वो पिंक कलर का हो जाएगा. सो वो इंडिकेट करता है कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. नाउ यू स्टॉप. तो इसमें इंडिकेटर हमने कोई ऐड नहीं किया, तो किसने इंडिकेटर जैसा ऐड किया? पोटेशियम परमैंगनेट. तो सेल्फ इंडिकेटर कौन हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट. KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर. नाउ एक्सटर्नल इंडिकेटर की बात करें तो एक्सटर्नल इंडिकेटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे अगर हम मान लें कि इंटरनल इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम आई, खुद ही इंटरनल इंडिकेटर अगर हमारा डार्क कलर का है, हमने उसके अंदर ऐड कर दिया. हमने NaOH का और H2SO4 का एग्जाम्पल है, टाइट्रेशन किया फॉर एग्जाम्पल, और हमने इंडिकेटर ऐड किया उस कोनिकल क्लास में जिसमें हमारा एसिड है NaOH, तो ब्यूरेट में फिल है हमारा. उस एसिड में जैसे अगर हमने एक इंडिकेटर को ऐड किया और इंडिकेटर डार्क कलर का है, फॉर एग्जांपल इट इज डार्क इन कलर, तो क्या होगा? जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई और जो कलर प्रोड्यूस हुआ तो क्या हमको दिखाई देगा? नहीं. हम उसको विजुअली डिटेक्ट करने में हमको प्रॉब्लम आएगी. या हमारे इंडिकेटर ने ही वो जो कोनिकल क्लास में मटेरियल है, सॉल्यूशन है, उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दिए, तो क्या हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा? एरर आ जाएगा. सो इसके लिए हम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ऐड करते हैं इसको अवॉइड करने के लिए. फिर सेल्फ इंडिकेटर हुआ. अब नेक्स्ट हमारे मिक्स इंडिकेटर्स हैं. मिक्स इंडिकेटर्स मतलब मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर. हमने एक अल्कलाइन वाला इंडिकेटर ले लिया, एक हमने एसिड वाला ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया. क्यों हमने ऐसा किया? भाई हमें मिक्स इंडिकेटर की तो कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब इंडिकेटर्स है. जब वो पीएच, हम ये कहते हैं, ये वाली बात अभी एसिड बेस जब हम आगे पढ़ेंगे टाइट्रेशन तो उसमें और बेहतर समझ में आएगी, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि पीएच इंटरवल 2 पीएच यूनिट होना चाहिए. 2 पीएच यूनिट का डिफरेंस होता है. 4 से 6 आ जाए, 6 से 8 आए, 8 to 10 आए, 2 पीएच यूनिट का डिफरेंस है. इसमें हमें कलर को विजुअल करने में, रिजल्ट लाने में बहुत इजी होता है. इट इज इजी टू डिटेक्ट दिस. ठीक है. लेकिन अगर पीएच रेंज बहुत छोटी है, मतलब हमने बिल्कुल एक पीएच रेंज से भी कम है, मतलब हमारा 1 से 2 नहीं गया, 1.3 पर ही कलर आ गया, तो क्या हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे? वो तो आपने एक ड्रॉप डाला और कलर प्रोड्यूस हो गया, आपको तो पता भी नहीं चला कि किस में हुआ. जो ड्रॉप आपने ऐड करी उसका कितना पार्ट आपको लेना था. सो जब हमको ये प्रॉब्लम आती है तो हम मिक्स इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं. ठीक है. तो काफी एग्जाम्पल्स है मिक्स इंडिकेटर्स के. मतलब अगर हम कहें
ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन और मिथाइल रेड को ले ले तो ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन होगा अल्कलाइन में और जो है रेड कलर देगा एसिडिक में, क्योंकि ये रेड कलर एसिडिक में देगा और ग्रीन कलर ये दोनों देंगे हमें अल्कलाइन में। अब एसिडिक में तो हो गया रेड कलर मिल जाएगा, है ना, अल्कलाइन में हो गया हमको ग्रीन कलर मिलेगा। बीच में क्या हुआ, जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ तब हमको मिलेगा, ये प्रोड्यूस करेंगे ग्रे कलर, pH 5.1 पर ग्रे कलर प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं मिक्स इंडिकेटर्स के। तो थोड़ा सा ये जो पार्ट है हमने इंडिकेटर का पढ़ा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे जब एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा बहुत याद रहे कि इंडिकेटर्स क्या है, हम ब्लैंक ना रहे, इसलिए हमारा प्रीवियस वीडियो के साथ ये सब मिक्स हो जाता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिड बेस हुए, प्रेसिपिटेशन हुए, सब इंडिकेटर्स खत्म हो गए। इंटरनल इंडिकेटर्स हुए, एक्सटर्नल इंडिकेटर हुए हैं, सेल्फ इंडिकेटर हुए हैं और मिक्स इंडिकेटर।